I'm Shreya Dhondial. It is the last day of 2025. And ladies and gentlemen, our last debate of the year is one I hope that I don't have to encounter in 2026. Because the last thing citizens of this country, ladies and gentlemen, need is faith policing from self-appointed custodians of religion. Ladies and gentlemen, a well-respected cleric has accused actress Nusrat Bharuch of committing the biggest sin in Islam, the Gunah-e-Azim. Why? Because she decided to end the year at the Mahakal temple in Ujjain, participating in the Bhasma Aarti, offering milk to Lord Shiva, and then applying chandan on her forehead like all devotees do. So grave is her sin, according to Maulana Sahab, that she needs to read the Kalma and ask Allah for forgiveness. First, let's listen in to what Maulana Shahabuddin Razvi has had to say. महाकाल मंदिर उज्जैन में नुसरत भरूचा ने जाकर के दर्शन किए, जल चढ़ाया और वहां मजहबी परंपराओं को निभाया। इन तमाम चीज़ों की इस्लाम इजाज़त नहीं देता है। उन पर शरीयत हुक्म लगाती है कि वो नुसरत भरूचा तौबा करें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें और कलमा पढ़ें। उन्होंने इस्लाम के उसूलों के खिलाफ काम किया है, इसलिए वो शरीयत की गिरफ्त में आ गई हैं और वो सख्त गुनाह-ए-अज़ीम के शिकार हैं। उनको तौबा करना ज़रूरी है। Now, Maulana Saab in his proclamations has mentioned Sharia a couple of times at least. Perhaps he's forgetting that India is not governed by the Sharia law. It is a secular democracy that constitutionally recognizes everyone's right to follow their religion whichever way they wish to. If we wish to follow more than one religion, believe in more than one God, our democracy gives us the right to do that. It's the right that Nusrat was exercising when she went to visit the Mahakal temple. Ladies and gentlemen, it's not just her. It's the right that Sara Ali Khan exercises every time she visits Kedarnath. It's the right Salman Khan and Shah Rukh Khan exercise when they bring Lord Ganesha home for Ganesh Utsav. It's the right that Katrina Kaif exercises when she takes a dip in the Ganga during the Holy Kumbh. Ladies and gentlemen, it is also the right that Priyanka Chopra and Deepika Padukone and Kangana Ranaut exercise every time they visit the Ajmer-e-Sharif Dargah. Faith, ladies and gentlemen, is personal, but self-appointed custodians of religion find that concept, well, too liberal, too bad. Not many people care what they think in any case. Nusrat certainly doesn't. Take a look at what she had to say. जय श्री महाकाल। मैं दूसरी बार आई हूँ और ये न्यू ईयर का टाइम है और फिर भी दर्शन करने पहुँची हूँ और सबने बहुत ही प्यार से और बहुत ही संभाल के, नॉट जस्ट मुझे बट जितने भी भक्त आए आज, क्योंकि न्यू ईयर का टाइम में इतनी भीड़ है, इतने लोग श्रद्धा से आते हैं। साल खत्म हो रहा है, नया साल शुरू करने जा रहे हैं और सब बस आशीर्वाद लेने आते हैं और उन्होंने इतने अच्छे से पूरी अरेंजमेंट की है, सबको लेके आए हैं, बहुत प्यार से सबका दर्शन हुआ है। मेरा मन करता है बस अब आती रहूं हर साल। और जय महाकाल। Ladies and gentlemen, you just heard her. This is the second time Nusrat says that she has visited the Mahakal temple. In interviews, and let's put that out for you as well, in her previous interviews, she has actually spoken about taking trips to Vaishno Devi and Kedarnath as well. But ladies and gentlemen, she remains a practicing Muslim, one that reads the namaz every day, 5 times a day, she says, if the time permits. So who decides that you can either visit a temple or read the namaz? That the two need to be mutually exclusive. They don't. And no Maulana, ladies and gentlemen, can tell us otherwise. And can I just say this, that no Bajrang Dal Doon can tell us that a Hindu girl can or cannot invite Muslim boys to her birthday party. They are no ones to tell us how we celebrate, who we celebrate with, how we love and who we love, and how we pray and who we pray to.
Ladies and gentlemen, as we step into a new year, is it too much to ask for a 2026 devoid of hate and mistrust against each other? Is it too much to ask for tolerance and acceptance? And is it too much to ask the Maulanas of the world and the Bajrang Dals of the world to mind their own business? My guest this evening, Maulana Shahabuddin Barelvi, National President of the All India Muslim Jamaat, at the center of the storm, at the eye of the storm, joining us on the broadcast. Maulana Sahab, thank you very much. Good evening to you. Ahmad Ayaz is a political analyst. He's joining us from Srinagar. Ahmad, thank you very much. Dr. Shalini Ali is the national convener of the MRM, joining us on the broadcast. Good evening, Shalini. And Avantika Shetty is an actress. She's joining us on the broadcast. First of all, I want to thank all of you for joining us on the last day of 2025. For all of us, I hope 2026 is better. मौलाना साहब, शुरुआत मैं आपसे करना चाहती हूँ. एक बार बताइए, नुसरत महाकाल गई, इससे आपको क्या दिक्कत है? देखिए, कोई कहीं भी जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर मुसलमान हैं तो मुसलमान को इस्लाम के दायरे में रहना होगा. इस्लाम के उसूल हैं और ज़ाब्ते हैं. इस्लाम ने अपने अनुयायियों को एक दायरे में रहने के लिए कहा है, तो उस दायरे में रहें और इस्लाम के उसूल और ज़ाब्तों को अपनाएं. हमें कोई दिक्कत नहीं है. हमने जो कुछ उन्होंने किया उसका हमने उनको रहनुमाई की. शरीयत का हमने हुक्म बताया कि नुसरत मुसलमान हैं, इस्लाम के अनुयायी हैं, इसलिए उनको इस्लाम के दायरे में रहना चाहिए, शरीयत की पासदारी करना चाहिए. आप जानती हैं और दुनिया जानती है कि इस्लाम मूर्ति पूजा की इजाजत नहीं देता है. तो जब मूर्ति पूजा की इजाजत नहीं देता है तो मुसलमान कैसे मूर्ति की पूजा कर सकता है, या जल अभिषेक कर सकता है, या गैर इस्लामी परंपराओं को निभा सकता है? ठीक है. तो उन्होंने ऐसा किया, इसलिए मैंने उनको हुक्म बताया कि ऐसा मत करिए, ऐसा करना जायज नहीं है, और ये गुनाह का काम है, और हर मुसलमान के लिए यही हुक्म है. और शरीयत का साहब, मेरा काउंटर क्वेश्चन आपसे ये है, इज्जत के साथ मेरा काउंटर क्वेश्चन आपसे ये है, आपने इस्लाम की बात की और आपने इस्लाम में दायरों की बात की और कहा कि हर मुसलमान को इस्लाम के दायरे में रहना चाहिए. तो आपने इस्लाम की तो बात की, लेकिन फैक्ट इज दैट नुसरत इज एन इंडियन बिफोर शी इज अ मुस्लिम. ठीक है, उसकी एक आइडेंटिटी और उससे मुसलमान होने से बड़ी आइडेंटिटी इंडियन होने की आइडेंटिटी है, हिंदुस्तानी होने की आइडेंटिटी है. बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी आइडेंटिटी एज एन इंडियन पहले आती है और उसके बाद मेरी आइडेंटिटी एज ए हिंदू आती है ना. तो मेरे को मेरे देश ने और मेरे देश के संविधान ने हक दिया है कि मैं जिस तरह इबादत करना चाहूं, पूजा करना चाहूं, करूं. मैं 5 बार नमाज भी पढ़ सकती हूं क्योंकि मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट दिया है, और मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे ये भी राइट दिया है कि नमाज पढ़ने के साथ साथ मैं अपने माथे पे चंदन भी लगा सकती हूं और मैं जल अभिषेक भी कर सकती हूं शिव भगवान का. तो मौलवी साहब, आप कौन होते हैं नुसरत को बोलने वाले कि आपको आपके जो संविधान ने हक दिया है उस हक की आप हकदारी नहीं है? देखिए, मैं आलिम दीन हूँ, 12 साल में मैंने मदरसे में पढ़ा, इस्लामियात का आलिम दीन हूँ, मुफ्ती हूँ, फतवा मैं देता हूँ. कोई भी मुझसे मसला शरई पूछेगा किसी के बारे में, वो मैं बताऊंगा. इसमें शरीयत की रोशनी में कोई ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, न कोई बादशाह है, न कोई गरीब है, न कोई अमीर है. सब शरीयत की रोशनी में सब लोग बड़े हैं. नुसरत नहीं, मोहम्मद बिन सलमान का नाम ले लीजिए तो भी शरीयत का हुक्म वैसे ही लागू होगा जितना एक लेकिन हम लोग शरीयत का हुक्म नहीं मानते, शरीयत का हुक्म नहीं आता. हमारा देश शरीयत के हिसाब से नहीं चलता मौलाना साहब. और आप कह रहे हैं, जब मुझसे पूछा, आपसे किसने पूछा? नुसरत ने तो पूछा नहीं कि मौलाना साहब मैं मंदिर गई, मैंने बड़ा गुनाह कर दिया, बताइए कि मैं क्या करूं, मैं अपने पाप की सजा कैसे दूं. उसने तो पूछा नहीं, आपने तो खुद बोला, खुद आपने उनको नसीहत दी. बट एनीवे, लेट डॉक्टर शालिनी अली कम इन हियर. डॉक्टर शालिनी अली, मौलाना साहब इज सेइंग दैट आई हैव merely told Nusrat and made her aware of what the Shariat says. The Shariat is very clear कि किसी भी मूर्ति की पूजा इस्लाम में नहीं हो सकती, और अगर वो मूर्ति की पूजा एक मुसलमान होके कर रही हैं तो उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया. इनफैक्ट शी हैज एक्चुअली managed to do or commit the greatest sin
under Islam. Do you agree with this? Shreyas, there are two things. Number one, I've always said that in India, we are following Islam according to the scholars that are wanting us to follow in. Has anyone ever given a fatwa against the Crown Prince of Jordan, who is actually the direct ascendant of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam Sahab? Has anyone given a fatwa against his wife for not wearing a hijab or a burqa? And in Islam, what makes it important is tawheed, your intent. Has he even bothered to ask Nusrat that, okay, you have gone there as a sign of respect, you have gone to the temple. Has anyone given a fatwa for the Baptist temple at UAE, where the land has been given, donated by the Crown Prince? And there are lots and lots of Muslims who go into the Abu Dhabi temple every year during Iftari that is being hosted in the Baptist temple. No, it's not. Because this is India, and because India has given you the democratic right to speak and to express your views, you come out and start giving and issuing fatwas and advisories. It's an advisory. Don't give him so much of importance. I'm telling it to you. It's an मौलाना साहब advisory. जवाब She दीजिए. doesn't have to follow it. नुसरत को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, एडवाइजरी है. आप कौन होते हैं ये जानने के लिए कि उसके दिल में, दिमाग में तौहीद है और अल्लाह के लिए है, और अगर वो उस मंदिर पे गई है तो क्या सोच लेकर गई है, क्या रिस्पेक्ट करना गलत है? क्या इस्लाम हमें ये सिखाता है कि आप अपने देश में एक तरीके का इस्लाम का प्रचार करिए और बाकी सारे देशों में जो वाकई शरीयत के हिसाब से चल रहे हैं वहां पे नहीं? डू यू नो इन जॉर्डन इट्स नॉट मैंडेटरी टू वेयर अ हिजाब. हमारे देश में हिजाब को लेकर इतना बड़ा बवंडर, और जॉर्डन में जहां के क्राउन प्रिंस डायरेक्ट डिसेंडेंट है हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के, नबी के, वहां पे इट इज नॉट मैंडेटरी. आप मौलाना साहब इसका जवाब देंगे. मौलाना साहब जरा जवाब दीजिए. मॉडेस्ट वेस्टर्न वेयर पहनती है. जवाब दीजिए. 2 पॉइंट्स में जवाब देना पड़ेगा आपको. हाँ, मैं जवाब दूंगा. हाँ, अबू धाबी में जो मंदिर बना है, अबू धाबी में जो मंदिर बना है वो डोनेट किया गया यूएई द्वारा, वहां के क्राउन प्रिंस द्वारा. उनके खिलाफ तो आपने फतवा नहीं जारी किया. फतवा आपने जॉर्डन की क्वीन के खिलाफ और उनके हस्बैंड के खिलाफ भी नहीं जारी किया, क्योंकि वो लोग तो कभी भी मैंने आज तक नहीं देखा उनको पर्दे के साथ. वो तो हर फोरम में जाती हैं, स्कर्ट पहन के जाती हैं और बिना पर्दे के जाती हैं और अपना सर ऊंचा करके जाती हैं. सभी लोगों के साथ हाथ मिलाती है. इनकी देखिए, हिम्मत मैं है. जवाब दे रहा हूँ, आप खामोश हो जाएंगे तो मैं जवाब दूं. पर फतवा जारी करें. जी जी रुक जाइए. एक तो थोड़ा मेरा ऑडियो बढ़ा दीजिए. पता नहीं आज क्या हो रहा है, मैं ही आप दोनों को नहीं सुन पा रही हूँ. हाँ मौलाना साहब दीजिए, जवाब दीजिए. देखिए, जहां तक संविधान की बात है, हिंदुस्तान संविधान से चलता है. यहाँ पर मुसलमान संविधान पर अमल करते हैं, संविधान की एक एक इबारत, एक एक लफ्ज पर अमल करते हैं. उससे किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है. दूसरी बात, जॉर्डन की बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री से जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने ये बात खुद मुझसे बताई कि प्रधानमंत्री के जो वहाँ जॉर्डन के बादशाह हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नस्ल से आते हैं, इसलिए मैं उनसे बातचीत करता हूं और मैंने उनसे दोस्ती की है. उन्होंने खुद मुझसे पूछा था प्रधानमंत्री जी ने कि आप जानते हैं मौलाना साहब कि मेरा दोस्त कौन है. मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं मालूम, आप बताइए. तो उन्होंने कहा कि मैं बताता हूं, और प्रधानमंत्री ने मुझसे खुद बताया कि जॉर्डन का बादशाह मेरा दोस्त है. हाँ. अब जो मोहतरमा कह रही हैं ये झूठ बोल रही हैं. वहां पर पर्दे पर, हिजाब पर कहीं कोई पाबंदी नहीं लगी है. इस्लामिक कंट्रीज में भी कहीं पाबंदी नहीं लगी है. नहीं. अभी ईरान में सिर्फ इतना हुआ. नहीं, वो ये नहीं कह रही है. वो ये नहीं कह रही है वहां पाबंदी है. वो ये नहीं कह रही है वहां पाबंदी है. वो कह रही है ये सब एडवाइजरीज हैं. किसी को फॉलो करना है फॉलो करिए, नहीं करना नहीं करिए. आप लोग बवाल करते हैं बुरके का. वहां पर तो देखिए वहां के मतलब जो रिलीजियस हेड्स हैं उन्हीं की पत्नियां ही नहीं पहनती हैं बुर्का. खैर बुरके की बात है भी नहीं और आज जॉर्डन की बात है भी नहीं. आज हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की. मौलाना साहब हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की, और हम ये बात कर रहे हैं कि नुसरत को नसीहत देने वाले आप कौन हैं? ऐसा क्या बड़ा गुनाह कर लिया? अगर वो 5 बार नमाज पढ़ती है तो ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह है कि वो महाकाल जाके वहां पे रुद्राभिषेक कर ले या वहां पे भस्म आरती में पार्टिसिपेट कर ले? ऐसा तो कोई गुनाह नहीं किया ना. गुनाह तो क्या होता है? किसी का मर्डर करना गुनाह होता है, झूठ बोलना गुनाह होता है, चोरी करना गुनाह होता है. किसी और के भगवान के सामने अपना सर झुकाना तो गुनाह नहीं होता. आप मुझको आज बोलिए, मैं अल्लाह के सामने सर झुका दूंगी और बहुत इज्जत से झुकाऊंगी.
क्योंकि जितनी ब्लेसिंग्स जहां से आ जाए उतनी अच्छा है। और मेरे को तो कोई हिंदू पंडित ये नहीं बोल सकता कि आपने हिंदुइज्म में सबसे बड़ा हराम किया है। मैं रिलीजन को कंपेयर नहीं कर रही हूं, मैं सिर्फ भावनाओं को कंपेयर कर रही हूं। अब जवाब सुनेंगी मोहतरमा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बरेलवी साहब सुनेंगे। आपने कहा कि आप कौन होते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि मैं आलिम दीन हूं और मजहबी रहनुमा हूं, मुफ्ती हूं, फतवा देता हूं। फतवा देना मेरा काम है, वक्तन फौक्तन मुसलमानों की रहनुमाई करना मेरा काम है, बुराई से रोकना मेरा काम है, मैं अच्छाई यही की तो पूछ दावत रही देना हूँ, मेरा काम है। मंदिर जाना बुराई कैसे, मंदिर जाना हराम कैसे, मंदिर जाना हराम अजीम कैसे? सिर्फ यही सवाल था मेरा बरेलवी साहब। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, आप जवाब सुनिए, पूरा मुकम्मल जवाब सुन लीजिए। देखिए, इस्लाम ने मूर्ति पूजा को हराम करार दिया है। गैर इस्लामी इबादत गाहों में जाना, सिर्फ जाना नहीं, अगर वहां जाकर के मजहबी काम करता है, कोई करती है, तो वो नाजायज है, हराम है, उस पर तौबा लाजिम है। यही बात मैंने नुसरत के बारे में मैंने कही कि वो गई, उन्होंने पूजा पाठ किया, जल चढ़ाया। ये जो है अल्लाह, सिर्फ इस्लाम खुदा की इबादत का कायल है, इसके अलावा किसी और की इबादत का कायल नहीं। ठीक है। और जो लोग अल्लाह की इबादत के अलावा किसी और की इबादत करते हैं, और अगर करेंगे या किसी ने किया है, हाँ। तो वो मुजरिम है, शरीयत की नजर में गुनहगार हैं, वो शरीयत के कटघरे में खड़े हैं, होंगे, उनको तौबा करना लेकिन होगा। हमारा देश, मैंने जैसे कहा, शरीयत से नहीं चलता, हमारे देश के संविधान से चलता है। और संविधान की नजर में कोई गुनाह नहीं हुआ है। संविधान की नजर में नुसरत ने अपना राइट टू रिलीजन प्रैक्टिस किया है, राइट टू फ्रीडम प्रैक्टिस किया है। Avantika Shetty, would you want to come in here as an actress? You know, my limited point is, and I just want to get in those visuals as well. How come we never hear from the Maulanas when someone like a Kajol or an Ajay Devgan show up at the dargah, when Tara Sutaria and Tiger Shroff show up at the dargah, where Kangana Ranaut shows up at the Dargah-e-Sharif, where Deepika Padukone shows up at the Dargah-e-Sharif, where Priyanka Chopra shows up at the Dargah, at the Ajmer Dargah. Tab koi problem nahi. There is no problem then. There is now a problem because Nusrat has gone to a temple. Do you find this hypocritical? It is hypocritical, and it is surprising that we are actually completing 2025 and reaching 2026, and we are still discussing those old things at this point in time. I believe when I was growing up, it was not such a big thing. Now suddenly this intolerance towards people practicing things out of their religion is becoming a big thing, and especially women, all the more when she's an actress. And the social media is not really helping. And I don't know, on your channel only a few days back, I don't remember exactly on what topic we were having a debate. It was again on pretty much these lines only, where I had to remind those people that we are from India, we are Indians first, and our constitution, Article 25, gives the freedom of conscience and whichever religious we need to practice. Avantika, but do you also think that Maulana Saab is intervening here because the person involved is a celebrity? Yeah, absolutely. And she's a woman. Is that the problem? Is that the problem, Ahmad Ayaz? All these voices that we are hearing today against Nusrat, we don't hear when we see pictures of Salman Khan welcoming Lord Ganesha into his home for Ganesh Utsav. Absolutely. We don't hear those voices when we see Shah Rukh Khan bowing his head, to a Hindu god when his wife is praying during Diwali and his children are also praying with him. No problem then, but there's a problem with Nusrat. It is not a matter of. It is not a matter of individuals. It is a matter that no Muslim can worship any idol or anybody other than Allah. I understand As that. long he stays as Muslim, I understand that. In Islam, for a Muslim worshipping anybody other than Allah is a great sin called shirk. So once one does the shirk in Islam,
he can't be Muslim. No Muslim can do Sharia. ये इतना कट्टरपन as ठीक such- है, as such- 2025 खत्म हो रहा है, 2026 No, शुरू हो रहा है. It's not a matter of. Ahmed Ayaz No, sir, it is I'm not asking a- you this it is not a question matter of respectfully. Kattarpanthi. I'm asking you this question respectfully. No, इतना it is not a matter of कट्टरपन ठीक है क्या? Kattarpanthi. It is not a matter of Kattarpanthi. Muslims are governed and guided by Quran or Hadith. Right? It is very clear in Quran that a Muslim can worship, he can pray only Allah. Nobody other than Allah. So anybody, well, as you say that India is a secular country, everybody has a religious freedom. One can go to any religious, but one cannot stay in Islam and worship. But you other will than not Allah. decide If for somebody Nusrat. wants to stay out of But Islam, I will let Shalini Ali come in. It cannot be both. Okay, I get your It point, cannot but be you both. cannot decide for Nusrat. You cannot decide for Sara Ali Khan, and you cannot decide for Katrina Kaif, and you cannot decide for Salman Khan, and you cannot decide for Shah Rukh Khan whether they want to be Muslims and only bow their head to Allah, or they want to, they want to practice the beautiful diversity in this country and bow their head to gods of all religions. You cannot stop them. And you cannot say Nusrat is not a Muslim anymore because, because she has gone to the Mahakal temple. Or you cannot say that Sara Ali Khan is not a Muslim anymore because she goes to Kedarnath twice a year. आप नहीं बोल सकते क्योंकि आप ऐसी बातें बोलेंगे तो कोई सुनेगा नहीं. इतनी कट्टरपंथी वाली बातें बोलेंगे तो कौन सुनेगा आपकी? बट शालिनी अली, I think you want to say something. Go ahead. Yes, I'll just tell you. बहुत सिंपल सी बात है. जैसे हम हिंदू एक्टर्स को देखते हैं दरगाह में जाते हुए रिस्पेक्ट पे करने के लिए, वो मुसलमान नहीं बन जाते हैं. करेक्ट. ठीक है. हाँ. जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट ये कहा कि एक मुसलमान के लिए तौहीद रखना और उसकी जो नीयत है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है. तौहीद उसकी कि वो अल्लाह में विश्वास रखता है, वो अल्लाह के सामने झुकता है. इंटेंट उसकी कि मैं एक मुसलमान हूँ, 5 वक्त का नमाज में पढ़ रहा हूँ, पर उसकी सोच ये भी हो सकती है क्योंकि मैं इस देश में रह रहा हूँ और भी धर्म यहाँ पे है, मैं उनको रिस्पेक्ट पे कर सकता हूँ. अगर श्रेयास एक बार चली गई कहीं पर और सपोज करिए दरगाह पे चली गई तो श्रेयास मुसलमान नहीं बन गई. बिल्कुल उसी तरीके से नुसरत चली गई महाकाल Absolutely. पे, उसने अपना हाथ जोड़ लिया. अभी अपना शो खत्म करने के बाद मेरे ऑफिस के बगल में एक गुरुद्वारा है. आज साल का आखिरी दिन है, मैं वहां जाऊंगी तो मैं सिख तो बन नहीं जाऊंगी, हिंदू ही रहूंगी. मौलाना साहब थोड़ा लिबरल हो जाइए, 2026 है. We leave it there. We'll leave it there. I'm very happy that we've had a civilized debate on the last day of the year. Maulana Saab, thank you very much for joining us and telling us what your point of view is. Thank you very much. Ahmed Ayaz for joining us. Dr. Ali, thank you very much. And Avantika Shetty, thank you very much for your time. With that, ladies and gentlemen, it's a wrap from me. Thank you for watching. I'll see you tomorrow in the new year. For the moment, have a very good evening. Thank you.